परमेश्वर पिता, हम आपकी आराधना करते हैं। Heavenly Father, we worship you. आप एक प्रेमी परमेश्वर हैं। You are a loving God. आप कोई धर्म नहीं प्रभु। You are no religion, O Lord. आपने पूरी मानव जाति से एक ऐसा बेशकीमती प्रेम किया You love the entire mankind with such a precious love कि आप मांस और लहू को पहनकर हमारे लिए आ गए। that you put on flesh and blood for our sake. आपने हमारे लिए उस महान बलिदान को दिया। You gave that great sacrifice for us. प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं। Lord, we worship you. क्या ही धन्य है वे लोग जिनकी आंखें इस सत्य के लिए खुल गई प्रभु कि तू कोई धर्म नहीं। How blessed are the people whose eyes are open to the truth that you are no religion. तेरा वचन कहता है स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मानव जाति उद्धार पा सके। Your word says under the heavens and on the earth there is no other name by which mankind can be saved. प्रभु, ये केवल तेरी कृपा है कि हम तुझे जान सके। Lord, it is only by your mercy that we could know you. हम करोड़ों बार प्रभु तेरे चरणों में तुझे धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। We worship you at your feet 1,000,000,000 times, O Lord. What a great privilege, कितना महान what a सौभाग्य, great honor कितना बड़ा आदर that we belong to you. कि हम आपके हैं। प्रभु, आज के वचन में तू अपनी श्वास को फूंक Lord, breathe your breath into the word today. कि तेरा वचन आज हमें और सत्य की ओर ले जाए। That your word would lead us towards more truth. हर एक रीति रिवाज के बंधन से हमें निकाल दे प्रभु। Set us free from every ritual and every हर tradition. एक धर्म कर्म के बंधन से हमें निकाल दे प्रभु। Deliver us from every religious bondage, O Lord. हमारी आंखों को खोल Open our eyes कि हम तुझे वैसे देख सकें जैसा तू है। that we would see you the way you are. आज का वचन तेरे स्वर्ग के सिंहासन से उतरे। That this word today come down from your throne, O God. हमें सुनने वाले कान दे पवित्र आत्मा, Holy Spirit, give us ears to hear और एक ऐसा हृदय जो तेरे रहस्यों को, तेरे गूढ़ की बातों को समझता है। and a heart that comprehends your mysteries, your secrets. हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। We praise you, we सारा glorify you. आदर, सारी महिमा प्रभु तुझे मिले। All honor and glory belongs प्रभु to you. यीशु के नाम में और In कलीसिया Jesus' ने name, and the कहा church said, Amen, hallelujah. I just want to Amen. welcome you. Thank you so much. मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। All our branch churches, सारे ब्रांच चर्चेस भी I want to welcome you. मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। Amen. You can be seated. आमेन। आप बैठ सकते हैं। Love you too. Thank you so much. Okay. Amen. We love you. Thank you so much. आज जो वचन हम सीखने वाले हैं वो प्रभु भोज के बारे में है। The word we are about to learn today is about the Holy Communion. और बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो परमेश्वर की उस मेज में एक रीति रिवाज के तरीके से आते हैं। And there are many believers that come to this table of the Lord as a ritual or a tradition. कुछ भी जब आप रीति रिवाज से करते हो तो उसमें कोई सामर्थ्य नहीं। When you do anything because of rituals, it has no power. It cannot transform your life. वो आपके जीवन को बदल नहीं सकता है। Anything done in the kingdom without the revelation is a dead tradition. राज्य में जो कुछ भी बिना प्रकाशन के किया गया वो एक मरा हुआ रीति रिवाज है। और इस बात को आपको समझना है कि यीशु मसीह रीति रिवाजों के सख्त विरोध में था।
And this you have to know that Jesus was strictly against such traditions and rituals. और दुख की बात है, उसी यीशु को जो रीति रिवाजों का विरोध करने आया, जो धर्म का विरोध करने आया, हमने उसी के नाम से एक धर्म बना दिया. And the sad thing is, the same Jesus that came opposing the traditions of man and the religion of man, we have put that Jesus in traditions and a religion. We made a religion for him. हमने उसकी शिक्षाओं का फिर से एक रीति रिवाज, एक ट्रेडिशन बना दिया. We took his teachings and made a tradition out of that. अरे वो तो हमें हर धर्म से आजाद करने के लिए आया था. Oh, but he came to set us free from every religion. Amen. Amen. तैयार हो आप वचन के लिए? Are you ready for the word? ओके. जब मैं परमेश्वर के वचन में मनन कर रहा था, जब मैं स्टडी कर रहा था इसमें, When I was तो meditating on God's word, मुझे लगा प्रभु एक संडे में तो ये इम्पॉसिबल है. I felt इवन टू ले द फाउंडेशन. it is impossible कि हम नींव भी रख पाएं एक संडे में. ये इतना डीप है मगर उतना पावरफुल है. It is so deep but yet so powerful. जो भीड़ यीशु के पास आती थी, The crowds that came to Jesus, भीड़ की भीड़ उसके पीछे चलती थी, crowds upon crowds came to him. They followed him. मगर मेजॉरिटी, ज़्यादातर जो वो भीड़ थी, वो यीशु के पास अपनी पर्सनल नीड के लिए आती थी. But the majority of the crowd came to him for their personal needs. और वो गलत नहीं है. And that is not wrong. ओके, यीशु ने कभी किसी को तिरस्कार नहीं किया कि मेरे पास अपनी पर्सनल ज़रूरत लेकर मत आओ. Jesus never shunned people away or boycotted them that don't come to me with your personal needs. मगर अगर आप केवल यीशु के पास पर्सनल ज़रूरतों के लिए आओगे और बस वहीं पे ख़त्म कर दोगे, तो फिर हमसे ज़्यादा अभागा और कोई नहीं. But if you come to Jesus just for your personal needs and end your relationship there, then there's no one more pitiable than us. Because you came so near to the fountain of life. क्योंकि आप जीवन के सोते के इतना करीब आ गए, and you went back without tasting the waters of eternal life. और बिना उस अनंत के जीवन के जल को चखे आप वापस गए. तो उस भीड़ में बहुत कम थे जो उसको जानना चाहते थे. आज बहुत कम है जो उस परमेश्वर की खोज में है, उसको जानना चाहते हैं वो कैसा है. So there were very few in that crowd that wanted to know him or how he is. मगर हमेशा इस बात को याद रखना कि परमेश्वर विश्वास योग्य है. वो थोड़े जो उसको जानना चाहते हैं उन्हीं के ऊपर वो अपने आप को प्रकट भी करता है. But always remember, God is faithful. He will reveal himself to those few that want to know him. हर कोई नहीं जानना चाहता उसको. Everyone doesn't want to know him. मेजॉरिटी लोग कहते हैं हमारी बस. कई लोग परमेश्वर को एक टोटके की तरह लेते हैं. Majority of people take God as a formula, as a quick fix. अच्छा वहाँ जाएंगे तो ये मिल जाएगा, बस हो गया हमारा काम. We'll go there, we'll get this, our job is done. नहीं, No. यीशु कोई बाबा नहीं है. Jesus is not a Baba. वो परमेश्वर है. He is God. उसका वचन कहता है तू मुझे खोजेगा और तू मुझे पा लेगा जब तू अपने संपूर्ण हृदय से मुझे खोजेगा. His word says you will seek me and you will find me when you will seek me with all of your heart. तो ऐसे ही वचन का प्रकाशन भी उन्हीं के ऊपर परमेश्वर उंडेलता है जो सच में उसको जानना चाहते हैं, उसमें बढ़ना चाहते हैं. वरना भीड़ है, वो भीड़ को वो देगा जिसको रोटी चाहिए वो रोटी उसने बढ़ा के दे दी, जिसको चंगाई चाहिए थी उसने चंगाई दे दी. वो सब करेगा मगर उन थोड़ों को वो इंतज़ार करता है कि वो कौन थोड़े हैं जो मुझे जानना चाहते हैं. He will only reveal himself upon those who really want to know him. Otherwise, those that came in the crowd who wanted bread, he gave them bread. Those who wanted healing, he gave them healing. But those few, those little that want to know him, he will reveal himself to them.
Amen. Amen. मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि आप मुझे मिसअंडरस्टैंड ना करें. I'm saying this again so you don't misunderstand. कई बारी जब लोग रिलीजियस हो जाते हैं, लीगलिस्टिक हो जाते हैं, तो वो कहते हैं ये गलत है परमेश्वर के पास चंगाई. नहीं, गलत नहीं है, वो आपका पिता है. आप उसके पास नहीं जाओगे तो किसके पास जाओगे? Sometimes people become too religious about this. No, you should not go to God for healing. If you don't go to God for healing, where else will you go? He's your father. मगर वहीं नहीं रुके रहना है. But don't just stay there. The goal is not just to get healed, the goal is to know him. उद्देश्य केवल चंगा होना नहीं है, उद्देश्य है उसको जान लेना. The goal is not just to get a blessing, the goal is to know that he is my reward, he is my true blessing. उद्देश्य केवल एक आशीष पाना नहीं, लेकिन उद्देश्य असल में ये जान लेना है कि वो मेरा उत्तम भाग, वो मेरा धन है. मेरा बैंक बैलेंस नहीं, Not मेरी my bank गाड़ी balance, नहीं, not मेरा my car, घर नहीं, not my मेरा house. यीशु मेरा सच्चा धन है My जो Jesus, मुझसे कोई नहीं छीन सकता. my Jesus is my true treasure and no one can take him away from me. वरना दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी होगा, जब अपनी मृत्यु शैया में होगा तो 1 रुपए यहां से वहां नहीं ले जा सकता. मगर जो यीशु में है, और अगर आप उसको जानते हो, आप सबसे धनी लोग हो, क्योंकि ऐसा धन आपके पास है जो यहां से वहां तक भी आपके साथ रहेगा हमेशा. Even the richest man on the earth cannot carry a penny beyond this point from their deathbed. But you are the richest people because your eternal treasure, Jesus, is with you on both sides. Amen. Amen. So it is like parenting. तो वो पेरेंटिंग के जैसा है. माता पिता, जब बच्चा घर में पैदा होता है, When a child is हम born, उसको खाना देते हैं, we give them food, उसके कपड़े धोते हैं, Wash his clothes, टॉयज लाते हैं. give them toys. मगर माता पिता साथ में बच्चों को ट्रेनिंग में डालते हैं, स्कूल में डालते हैं. But along with that, parents put the kids into a training, into schooling. माता पिता होना का मतलब ये नहीं केवल जो हमारा बच्चा मांगता है उसकी सारी ख्वाहिश को हम पूरा करेंगे, फुल स्टॉप. वो माता पिता होने का के भाग में एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, मगर पूरी पेरेंटिंग वो नहीं है. To be a parent doesn't only mean we will fulfill all the needs of our child. It is a portion of our parenting, but not all of it. फिर हम चाहते हैं हमारा बच्चा बढ़े, Then we want our kids to grow. हेल्दी हो. They become healthy. ऐसा नहीं अगर वो आपसे टॉफी लॉलीपॉप मांगे तो आप हर समय टॉफी लॉलीपॉप दोगे. It's not No. like you will give them toffee and lollipop Because all see the this. time. Yes, you want to see your kids happy, हाँ, हम अपने बच्चों को खुश देखना चाहते but हैं, more than you want to see your kids happy, you want to see them healthy. लेकिन खुश से ज्यादा आप उनको स्वस्थ देखना चाहते हैं. In the same way, your heavenly Father, yes, He wants to see you happy, but He also wants to see you spiritually healthy. ठीक वैसे ही आपका आत्मिक पिता भी आपको खुश देखना चाहता है, पर उससे ज्यादा वो आपको आत्मिक रूप से स्वस्थ देखना चाहता है. So while He heals you and He promotes you and He gives you a house and He blesses with your car, that is not just a relationship with Jesus. Then He puts you into a discipline. Then He puts you into a training so you are transformed in the image and likeness of His Son Jesus. तो जब वो आपको चंगा करता है, आपको उन्नति देता है, घर और गाड़ी और सारी आशीषें देता है, बात यही खत्म नहीं हो जाती. वो आपको एक अनुशासन में, एक ट्रेनिंग में डालता है, क्योंकि वो आपको बढ़ते हुए देखना चाहता है. Amen. Amen. क्योंकि याद रखना, जैसा जीवन आप यहाँ पे जियोगे ये निर्धारित करेगा अनंत में आप कैसा रहोगे. Because remember, the kind of life you will live on the earth will determine how your eternity will be. यीशु ने कहा उस भोजन के लिए मेहनत मत करो जो नाश हो जाता है. Jesus said, do not labor for the bread that perishes. If all your life's goal is this life, which is for a moment, the Bible says. अगर आपके जीवन का पूरा उद्देश्य इस जिंदगी से है जो क्षण भर की है, बाइबल कहती है. वचन कहता है हमारा जीवन उस घास की तरह है जो आज सुंदर है, हरी है, उस पे ओस की बूंदें हैं, बहुत सुंदर लगती है. 2 दिन बाद आप आके देखोगे तो अरे तो सूख गई. The Bible says our life is like that grass which is green today, has dew drops on it, and 2 days later it's dried up.
So if you don't have the eternal perspective in your mind, you will use this relationship with Jesus just for earthly things. अगर आपके भीतर वो अनंत का दृष्टिकोण, वो अनंत का नजरिया नहीं है, तो आप यीशु के साथ रिश्ते को इस्तेमाल करोगे सिर्फ इस जीवन की चीजों को पाने के लिए. And you will not desire growth, you will not desire maturity. और आप चाहत नहीं रखोगे बढ़ने की, सयाना होने की, परिपक्व होने की. अभी मैंने वचन शुरू नहीं किया. I have not Okay, started मैं the आपको word. बस I just want to lay a foundation so that you understand. मैं बस एक नींव रख रहा हूं ताकि आप समझ पाओ. Okay? हमें आत्मिक बुद्धिमान होना है. We have to be spiritually wise. Okay? There are people who are wise with their money. लोग The way they spend their money, they are called wise because they know how to invest their money. लोग अपने पैसे में बुद्धिमान होते हैं क्योंकि उनको पता है कि कैसे निवेश करना है. जो लोग अपने पैसों का सही निवेश करते हैं आज, लोग उन्हें बुद्धिमान कहते हैं. People that invest their money well, others लोग call कहते हैं, them अरे wise. वो जब शेयर आया था नया, उसने वो शेयर मार्केट में देखो आज उसके पास, उसने प्लॉट, अगर हमने प्लॉट खरीद लिया होता 20 साल पहले, अब बोलते हैं हम लोग. Yeah. Oh, when that company came, this man bought the shares. He bought a plot 20 years ago. If we bought the plot 20 years ago, we say things like that. तो जो बुद्धिमान पैसे में है, वो उसका फल आगे लेते हैं. So he who is wise with money, they reap the fruit of it later. मगर आपको पता है, But you know- पैसे से भी ज्यादा कीमती समय है. More- क्योंकि पैसा आप वापस कमा सकते हो, जो समय बीत गया वो वापस आपके पास आने वाला नहीं है. और याद रखना, अनंत के दृष्टिकोण में सबसे बुद्धिमान स्त्री और पुरुष वो है जिसने अपना समय अपने सृष्टिकर्ता की सेवा करने में, अपने सृष्टिकर्ता के साथ बिताया. क्योंकि वो समय आपका व्यर्थ नहीं हुआ, वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट था जो आपको रिटर्न अनंत तक देगा. But more wise than that man is the man or the woman that spends their time in the perspective of eternity, because that time spent with their Lord will reap them a harvest for all of eternity. जितने घंटे आपने वचन में बिताए, जितने घंटे आपने प्रार्थना की, आपने उपवास किया, आप यीशु के चरणों में बैठे, वो टाइम बेस्ट इन्वेस्टमेंट है आपके जीवन का. The hours you spent in prayer, in word, at the feet of Jesus, that is the best time of investment of your life. उसकी पुस्तक में लिख दिया गया है. It has been written in his book. And nobody और कोई भी can take that investment away from you. वो निवेश आपसे दूर नहीं कर सकता है. And you will reap the harvest और उसका प्रतिफल The आप काटोगे. returns. उसका जो फायदा है for eternity. अनंत के लिए.